পাকিস্তানের 100 কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে গড়িয়ে দিয়ে এলো ভারত। রাত 1:05 থেকে 1:30 এর মধ্যে ধ্বংস একের পর এক টার্গেট। ভারতে প্রত্যাঘাত নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি বিদেশ মন্ত্রকের সচিব বিক্রম মিশ্রি। উপস্থিত ছিলেন দুই মহিলা সেনা অফিসার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ভূমিকা সিং। একের পর এক জঙ্গি হামলায় বারবার ভারতে প্রাণ গিয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে সেনা জওয়ানদের। আর পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা ছিল ভয়ঙ্কর কাণ্ড। এত বেশি সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু কোনো হামলায় সংঘটিত হয়নি। আর এই তথ্য তুলে ধরে ভারত এবার স্পষ্ট বার্তা দিল যে আর নয়। মঙ্গলবার রাতে ভারত সামরিক অভিযান চালানোর পর অপারেশন সিন্দুর নিয়ে বুধবার সকালেই নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। তার সঙ্গে ছিলেন উইং কমান্ডার ভূমিকা সিং এবং কর্নেল সোফিয়া কুরেশি। সাংবাদিক বৈঠকে উইং কমান্ডার ভূমিকা সিং এবং কর্নেল সোফিয়া কুরেশি জানিয়েছেন যে অপারেশন সিন্দুরের টার্গেট ছিল লস্কর, জৈশ এবং হিজবুল ঘাঁটি। অপারেশন সিন্দুর সম্পর্কে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি বলেছেন যে পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের ন্যায় বিচার দেওয়ার জন্য এই অভিযান শুরু করা হয়েছিল। 9টি জঙ্গি ঘাঁটি লক্ষ্য করে এই হামলা চলেছে। এই হামলায় যাতে কোনো সাধারণ নাগরিক না মারা যান, কোনো অসামরিক সম্পত্তি যাতে ধ্বংস না হয় তা বিচার করে ভারত হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তার কথায় বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য এবং সীমান্ত সন্ত্রাসবাদে তাদের সূত্রের ভিত্তিতে জঙ্গি ঘাঁটি নির্বাচন করা হয়েছিল। আর সেই সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই পুরনো কিছু হামলার ছবিও তুলে ধরা হয়। উল্লেখ করা হয় যে ভারতে কিভাবে দিনের পর দিন পাক জঙ্গিদের হামলা চলেছে। বিক্রম মিশ্রি, সচিব বিক্রম মিশ্রি তিনি উল্লেখ করেছেন যে হামলার 15 দিন পরেও পাকিস্তান তার মাটিতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এবং পুরো দায় অস্বীকার করে এসেছে। বিক্রম মিশ্রি বলেন, আমাদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য ছিল যে ভারতে আরো এই ধরনের হামলা হতে পারে। বিদেশ সচিব জানিয়েছেন সাক্ষী এবং সংস্থার মাধ্যমে আক্রমণকারীদের শনাক্ত করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের ভূমিকা সম্পর্কে ভারতের কাছে ইতিমধ্যেই নথি রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, 22 এপ্রিলের আক্রমণকারী এবং সমর্থকদের বিচারের আওতায় আনা জরুরি ছিল। ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে পাকিস্তান কেবল তা অস্বীকার করে গিয়েছে। আজ বুধবার সকালে ভারত আক্রমণের প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করেছে। কর্নেল সোফিয়া কুরেশি তিনি জানিয়েছেন মঙ্গলবার রাত 1:05 থেকে 1:30 এর মধ্যে অভিযান চালিয়েছে ভারতীয় সেনা। 9টি ঘাঁটিকে টার্গেট করে ধ্বংস করা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে টার্গেট বেছে নেওয়া হয়েছিল, এমন ভাবে বাছা হয়েছিল যাতে সাধারণ নাগরিকদের কোনো ক্ষতি না হয়। কর্নেল সোফিয়া কুরেশি জানিয়েছেন পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর উভয় জায়গাতে অভিযান চালানো হয়েছিল ভোর রাতে এবং সাধারণ মানুষের যাতে কোনো ধরনের ক্ষতি হয় না সেদিকেও খেয়াল রাখা হয়েছে। প্রথমে সাওয়াই নালা ক্যাম্প থেকে নিশানা করা হয়। জৈশ এবং লস্করের শিবিরগুলি ছিল তাদের টার্গেট। 9টি জায়গায় 21টি টার্গেট ধ্বংস করা হয়েছে। পাকিস্তানের যে জায়গায় হামলা হয়েছে সেটি হলো শিয়ালকোট, সেখানে ছিল একটি হিজবুল ক্যাম্প। কর্নেল আরো জানিয়েছেন যে পাকিস্তানের বাহওয়ালপুরে জৈশ ই মোহাম্মদের মারকাজ সুবহান আল্লাহকে নিশানা করেছিল ভারত সেনাবাহিনী। जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का
मुख्य आधार बन रहा था। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का
प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।